Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Carbon Group Upper Schools and students. In this class nowadays we are going with the book The Moments, and we have taken the first chapter in Moments, that is the Lost Child. You have got two videos in this chapter. Let us recapitulate once a brief summary of whatever we have gone through up to now. You have seen it was a season of spring. The people of the village came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. A child along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. He was attracted to the stalls of toys and sweets. Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards other things. The child moved forward but once again lagged behind because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. His mouth watered seeing sweets decorated with gold and silver leaves. He wanted his favorite burfi, but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy, he walked ahead. Then he saw beautiful garlands of gulmohar, but did not ask for it. Then he saw balloons, but he knew very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons, so he walked away. Then he saw a snake charmer and a roundabout swing. As he stopped to ask his parents for permission to enjoy the swing, to his astonishment, there was no reply. Neither his father nor his mother was there. Now the child realized that he was lost. He ran here and there but could not find them. The place was overcrowded. He got terrified, but suddenly, what happened? We are supposed to read and try to find out in this way. The very important question that rises over here: how would he be able to find his parents in that fair, in that place that was so overcrowded? Let us try to read the story, the remaining part of the story, that is on the page number 4. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through the people's legs, his little sobs lingering. Mother, father. So once again the boy started running. एक बार फिर से बच्चा दौड़ पड़ा. And this time to a shrine. और इस बार वो एक मंदिर की ओर, एक श्राइन की ओर भागा. ओके, इस बार उसका जो डायरेक्शन था दैट वाज टुवर्ड्स अ श्राइन, जहाँ पर ढेर सारे लोगों ने क्राउड बना रखा था, ढेर सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे. ही रैन टुवर्ड्स देयर. दैट प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड. वो प्लेस ओवर क्राउडेड थी. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन. यहाँ पर हर एक इंच की जो जगह थी वो लोगों से की भीड़ से भरी हुई थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स. लेकिन वो जो है लोगों के पैरों के बीच से, लेग्स के बीच से जो है आगे बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ा. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, एंड इवन नाउ ही वॉज कॉलिंग फॉर हिज मदर एंड फादर. सो ही रैन थ्रू द लेग्स ऑफ मैन कॉलिंग आउट फॉर हिज पेरेंट्स. ओके, अपने पेरेंट्स को पुकारता हुआ वो लोगों के लेग्स के बीच से होता हुआ आगे बढ़ रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, however, the crowd became very thick. When he reached at the entrance of the temple, जब वो मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंचा, at that place
जो क्राउड थी वो बहुत ठीक थी, वहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। Men jostled each other, यहाँ पे जो लोग थे वो एक दूसरे से अपने उनके कंधे जो थे वो घिस रहे थे, ओके, जॉसल कर रहे थे। मीन्स द क्राउड वॉज पुशिंग ईच अदर, ओके, एट दैट प्लेस, एज स्पेशली एट द entrance. The crowd became all right with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Okay, the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. So the boy got scared of huge strong men who stared people with their murderous eyes and pushed them with their strong and big soldiers. और जो बॉय था वो इतने स्ट्रांग लोगों को देख करके एकदम डर गया, जो कि आपस में ही एक दूसरे की ओर मर्डर आइज से जो है देख रहे थे। अगर कोई आदमी किसी दूसरे को धक्का देता तो दूसरा आदमी उसको मर्डरस आइज से देखता और दूसरे आदमी को फिर वो आदमी धक्का देता। मीन्ट दे, और उन सभी स्ट्रांग लोगों के बीच में छोटा बच्चा कैसे अपनी जगह बना पाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा वो। लेकिन फिर भी वो लोगों के लेग्स के बीच से होके निकल रहा था, और लेकिन बीच बीच में जो उनका ब्रूटल मूवमेंट था उससे वो नीचे गिरा दिया जाता था। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." The boy could have been crushed under the feet of the man. If under the feet of the man had his cries not been heard by a man in the crowd. Okay. वो तो लोगों की भीड़ में उनके पैरों के नीचे दब ही गया होता अगर वो खूब तेज से अपने मम्मी पापा के लिए ना पुकारता। वहाँ पे जब एकदम दबने वाला था, एकदम किलिंग कंडीशन में था, तब जो है वो अपनी मम्मी पापा के लिए एक बार फिर से बुलाया। अपनी जितनी भी ताकत थी उसकी, उसने फुल वॉइस से, पिच ऑफ वॉइस से उसने बुलाया, फादर एंड मदर। और उसकी इस आवाज को एक आदमी ने सुना, एक भले इंसान को इसकी आवाज सुनाई पड़ी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। उस पूरी उफनती हुई भीड़ में एक आदमी में से एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो बड़ी मुश्किल से बेचारा झुक करके उसको अपनी आर्म्स में ऊपर उठा लिया। ही लिफ्टेड द चाइल्ड। Okay, so a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. बड़ी मुश्किल से उसको अपने आर्म्स में ऊपर उठाया। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. So, as the man got the child out of the crowd, he asked him how he had reached there. एंड वो और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, वो किसका बच्चा है। उसने पूछा उससे कि तुम पहुँचे कैसे वहाँ पे। इसके पहले वो जो है उसको वहाँ से पहले भीड़ से बाहर निकाल कर लाया और उससे पूछा कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और अब जो है बच्चा और तेज से रोना शुरू कर दिया, और रो के बस एक बात बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अच्छा, ये अक्सर दिस इज़ अ वेरी जनरल फेनोमेना व्हेन एवर यू आर इन डिस्परेट मूड, और अगर काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्परेट हैं आप, और उस कंडीशन में आप भले ही शांत हो गए हो, अगर उस कंडीशन में कोई आपसे पूछने लगता है कि क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो, तब आप एक बार फिर से जो है रो पड़ते हो। कुछ ऐसा ही बच्चे के साथ हुआ। जब इस आदमी ने इस थोड़ा सा सिंपैथेटिक वे में प्यार से इससे पूछा कि
तुम वहां पर कैसे पहुंचे? तो वो और तेज रोने लगा. ही बिगैन वीपिंग मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड he was unable to say anything. He was just saying only one thing, that he wants his mother, he wants his father. वो शायद और कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं था. वो बस एक बात बोल रहा था कि उसे उसकी माँ चाहिए, उसे उसके पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब यहाँ पे जो चाइल्ड साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट है वो आपके सामने आता है. अभी तक आप लोगों ने देखा कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था. ही वॉज विथ हिज फादर एंड मदर एंड ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, दो ही न्यू इट वेरी वेल दैट हिज रिक्वेस्ट विल बी डिनाइड. डिस्पाइट ऑफ दैट ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर अट्रैक्ट्स हिम. वो जिसको भी देखता उसी चीज को देख करके वो अट्रैक्ट होता और वो हर चीज पाने की रिक्वेस्ट करता अपने पेरेंट्स से. अब इसका सेकंड फिनोमेना देखो. अभी वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, अभी वो अपने पेरेंट्स से दूर है और अब एक दूसरा इंसान, एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर उसको उन्हीं सब चीज़ों के पास ले जाता है जिसके लिए अभी तक वो रिक्वेस्ट कर रहा था. उसी राउंड अबाउट के पास ले जाता है जिस राउंड अबाउट स्विंग पे जो है झूलने की इच्छा ने उसको अपने पेरेंट्स से अलग किया था. वो अजनबी इस बच्चे को उसी राउंड अबाउट के पास ले गया. तो मैं उसको सूद करने के लिए कि थोड़ा सा शांत हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए. टू सूथ हिम द मैन टुक हिम टू द राउंड अबाउट एंड आस्क, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम उन हॉर्स पे राइड करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. वो रिंग के पास पहुंचा और पूछा कि क्या आप इस पे जो है इस पे राइड करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 still sobs and only shouted, I want my mother, I want my father. So you can see that here the man offered him a ride on the horse, but the child did not need anything now. अब उसको कुछ नहीं चाहिए था. अभी बच्चे का जो गला था, थ्रोट था, वो दैट टोर इनटू 1,000 स्टिल, खूब और सिसकियों के साथ वो जो है और तेज से सिसकते हुए उसने वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर फादर. मीन्ट ही डज नॉट नीड एनी अदर थिंग एल्स हिज पेरेंट्स. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा. अभी सेम सीक्वेंस में आप जिस सीक्वेंस में आप आगे बढ़े हैं उसी सीक्वेंस में आप पहले मिठाई मिलती है, फिर उसके बाद फ्लावर वाला, फिर उसके बाद बलून, उसके बाद स्नेक चार्मर, फिर राउंड अबाउट. अभी राउंड अबाउट, फिर स्नेक चार्मर के पास पहुंचा. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड, जहाँ पे स्नेक चार्मर अभी भी अपने कोबरा को नचा रहा था अपने बीन पे. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड एंड ही ऑफर्स हिम टू लिसन द म्यूजिक ऑफ द बीन, द फ्लूट. ओके, क्योंकि सिंस द मैन स्टार्टेड वॉकिंग बैक ऑन द सेम रूट which the child had taken, so he took the child to the snake charmer and he asked him to listen to the nice music being played by snake charmer. वो स्नेक चार्मर की जो नाइस म्यूजिक थी उसको सुनने के लिए ऑफर किया. Here, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. You can see over here. The child shut his ears. बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए अपनी फिंगर से, और जितनी तेज वो चिल्ला रहा था उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में वो चिल्लाया और उसने बोला that he wanted his parents only. उसको केवल उसके पेरेंट्स चाहिए. Then
The man took him near the balloons, thinking the bright colors of balloons would distract the child's attention and quieten him. वहां से वो उस बच्चे को लेकर के बैलून सेलर के पास पहुंचा. उसको लगा, he thought that the man took the child to the bright colored balloons, hoping that he might get cheered by seeing them. His mind will get distracted from his parents for the balloons. उसको लगा कि शायद बैलून्स की जो ब्राइट कलर्स हैं वो उसके बच्चे के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसको शांत कर देंगे. उससे पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? आपको ये रेनबो कलर बैलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, तो ऐसा परसू करते हुए उसने पूछा उससे, उसने ऑफर किया कि क्या वो बैलून चाहता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. बच्चे ने अपनी आंखें घुमा लिया फ्लाइंग बैलून से और वो शॉबिंग करते हुए बस एक बात उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट. ओके, अभी द मैन ट्राइड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. ही वॉज मेकिंग हिज बेस्ट एफर्ट टू क्वाइटन द चाइल्ड. वो बच्चे को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहा था. ही वॉज मेकिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स so that the child may be quietened and he may become happy. तो बच्चे को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए वो सारे प्रयास कर रहा था. He bore him to the gate, उसको गेट की ओर ले गया. गेट पे आप लोगों को याद है, जब से ही गेट की एंट्री किया था, पहली दुकान मिठाइयों की थी, उसके बाद वाली दुकान किसकी थी? उसके बाद वाली दुकान थी फ्लावर की. तो उसको लेकर के वो फ्लावर सेलर के पास पहुंचा. ओके, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहां वो फ्लावर बेचने वाला बैठा हुआ था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? एंड ऑफर्स हिम, ही आस्क्ड हिम टू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स. उसने कहा कि बेटा, क्या आप ये फ्लावर की नाइस स्मेल को फील करना चाहते हो, उसको स्मेल करना चाहते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? इवन फ्लावर ही नहीं, उसने जो है बच्चे के लिए एक गार्लैंड भी ऑफर किया कि क्या वो गार्लैंड चाहता है, वो गार्लैंड लेना चाहता है अब वो अपने गले में डालने के लिए. वुड ही लाइक्स अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक. पूछता है कि क्या वो जो है अपने गले में पहनने के लिए उसको गार्लैंड चाहिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. अभी तक यही फ्लावर उसके मन को लुभा रहे थे, अभी तक इन्हीं गुलमोहर के फ्लावर्स को स्मेल करने की जिद कर रहा था वो अपने पेरेंट्स से. उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके लिए फ्लावर खरीद दें या उसके लिए वो जो है एक गार्लैंड खरीद दें. लेकिन अभी उसके पेरेंट्स खो गए हैं. अब उसको इस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, फ्लावर की स्मेल भी नहीं चाहिए और गुलमोहर का वो गार्लैंड भी नहीं चाहिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. बच्चे ने अपनी नोज को बास्केट से दूर कर दिया. एंड रिएटरेटेड द सॉब, और अपनी सॉबिंग को और तेज कर दिया. वो और जोर जोर से रिपीट करते हुए सॉबिंग करने लगा और बस एक बात बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अभी जैसे ही आपको याद होगा, जैसे ही ये लोग मेले में पहुंचे थे, सबसे पहली दुकान थी मिठाइयों की. उधर से ये अंतिम दुकान, क्योंकि वापस आ रहा है तो अंतिम दुकान पहुंचा मिठाइयों की दुकान पे और मिठाइयों का ऑफर किया इसको.
उस आदमी को लगा कि शायद वो मिठाई अगर उसको ऑफर की जाएगी तो उसको कुछ ह्यूमर मिलेगा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सलेट चार्ज, बच्चे के डिस्कॉन्सलेट चार्ज को उनको ह्यूमर देने के लिए उसने सोचा कि उसको मिठाइयों का गिफ्ट दिया जाए। द मैन टुक टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो आदमी उसको बच्चे को लेकर के मिठाइयों की दुकान पे पहुंचा। फाइनली द मैन टुक टू द स्वीट मीट सेलर एंड ऑफर्ड हिम, उसको ऑफर किया, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, चाइल्ड टेल मी व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, बताओ तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मिठाई कौन सी है, ही आस्क्ड। याद करो शुरुआत में यही बच्चा, इसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी, बर्फी थी, और ये बच्चा इसी मिठाई की दुकान पे खड़े होकर बर्फी के लिए रिक्वेस्ट करने वाला था कि उसको उसके लिए बर्फी कर दिया जाए। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड को नहीं मानेंगे, इसलिए वो हल्का सा बस रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ गया था। अभी दूसरा आदमी, जबकि उसके पेरेंट्स तो खो गए हैं, लेकिन एक दूसरा आदमी, एक अजनबी जो है वो अपने जो वो है वहाँ पे उसको ऑफर कर रहा है कि तुम बताओ कौन सी मिठाई खाओगे। लेकिन द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपने चेहरे को मिठाई की दुकान से दूर कर लिया एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अभी उसको कोई मिठाई नहीं चाहिए थी, ही needed only his parents. Still the child did not want his favorite sweet but wanted his parents. So students, in this way you have got the line by line explanation of the chapter. आपने देखा कि the story is based on the theme of close bond that children share with their parents. ये जो है स्टोरी है एक क्लोज बॉन्ड पर बेस्ड है जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। वो जो लॉस्ट चाइल्ड है, ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज डिजायर्स एंड yearns डीपली फॉर हिज पेरेंट्स व्हेन ही फेल्स टू फाइंड देम। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है, उसके बाद उसकी सारी डिजायर्स जो अब तक वो yearn कर रहा था, अपने पेरेंट्स के खोने के बाद उनमें से कोई डिज़ायर उसकी नहीं रह गई थी। एवरीथिंग एल्स लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हिज विश टू बी रीयूनाइटेड विथ हिज पेरेंट्स। अभी जितनी भी अन्य चीज़ें थी सब ने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया था, केवल एक चीज़ मैटर करती थी अब, और वो उसकी विश थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट हो जाए। यू कैन सी कि जो स्टोरी है वो एक मैसेज कन्वे करता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, और उनका अपने पेरेंट्स से जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है। द लॉस्ट चाइल्ड थिंक्स ऑफ हिज फादर एज अ स्ट्रिक्ट पर्सन व्हेन ही डिमांड्स ट्वाइस फ्रॉम हिम। जो लॉस्ट चाइल्ड है वो सोचता है कि उसके फादर एक स्ट्रिक्ट पर्सन है जो कि उसकी एक भी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, चाहे वो डिमांड टॉयज की हो, चाहे वो डिमांड मिठाइयों की हो, चाहे वो डिमांड गार्लैंड्स की हो, बिकॉज ही एक्सेप्ट्स दैट दे विल नेवर ग्रांट हिम हिज विश। उसको पता है, उसने ये मान लिया है इस बात को कि उसके पेरेंट्स उसकी विश को पूरा नहीं करेंगे। हाउएवर he gets scared when he realizes that he is lost. लेकिन फिर भी पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, वो पेरेंट्स हैं। जैसे ही वो महसूस करता है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, he gets scared, वो डर जाता है। he cries inconsolably for his parents and forgets all about his cravings for sweets, garlands, snake charmer, so and even the ride on a roundabout. जैसे वो अपने पेरेंट्स से खो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। उसकी जो भी इच्छा थी, मिठाइयों की, गार्लैंड की, स्नेक चार्मर शो की,
यहाँ तक कि राउंड अबाउट पे राइड करने की। अब उसको कुछ भी और नहीं चाहिए, पहले उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। ये जो मैसेज है स्टोरी की, इट मेक्स द रीडर अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ पेरेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के जीवन में पेरेंट्स की जो क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को बड़े अच्छे से दिखाने का प्रयास किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस वीडियो। वी शैल मीट in the next video. Thank you for watching and remain connecting me till the end. Thank you. Have a nice day.